हेलो एवरीबॉडी एंड वी आर बैक विद द सीएसएम कॉन्फिडेंशियल। और आज का एपिसोड बहुत 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 ही खास है। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। हम क्रिकेट की बात करते हैं तो विराट कोहली की बात करते हैं। और अब जब कस्टमर सक्सेस कम्युनिटीज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अंकित अग्रवाल की बात करते हैं। तो आई हैव द प्लेजर ऑफ विद मी ऑफ हैविंग अंकित अग्रवाल फ्रॉम मोएंगेज। तो welcome Ankit, welcome. Thank you so much for accepting my invitation to be on the podcast. Thank you for inviting me over, Hardeep. और आज हम अंकित के साथ सो वी हैव हर्ड अ लॉट अंकित टॉक अ लॉट अबाउट कस्टमर सक्सेस कम्युनिटीज और इनका सब कुछ हम लोग देखते रहते हैं। आज हम वी आर गोइंग टू ट्राई एंड नो अंकित अ लिटिल बिट मोर पर्सनली। और काफी चेस करने के बाद आज फाइनली मैंने ये मुहूर्त निकाल ही लिया। मुझे लगा अब ये मौका आ गया कि अंकित शुड बी ऑन द पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच अंकित फॉर यू नो Thank एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। अच्छा, विल जस्ट ड्राइव स्ट्रेट इनटू इट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। Ankit, there सबसे पहले like a lot I'm sure everybody knows you, but like we still want to hear from you, like how would give us a little bit about background about yourself कि just from Ankit Agarwal से CS mentor तक का जो ये सफर हुआ है, just give us a little bit about introduction, tell us that. about your family, other things. Sure, Hardeep. Yeah. So, education-wise, I graduated back in 2013. Did computer engineering. So, जैसे सब लोग करते हैं, I Hmm. did the same. I started my journey as a developer. Then, I remember I used to work as a PHP developer, Hmm. WordPress, Joomla, all those things. Hmm. Uस time I created around 200 plus websites or something, web applications. Hmm. Then उसके बाद धीरे धीरे you become a project manager sort of a thing. वहाँ पे, Right. there was this company, a small company I used to work with. They gave me a title of customer success manager when I was a project manager. So I was like, अरे यार ये क्या नई चीज़ है? Because that is something when it was 2014. Uh, or India में nobody would have heard about customer Hmm. success in 2014. So I हाँ. remember I was like, hey, ये क्या चीज़ नया title है? But ठीक है, let's get into it. And Hmm. then I had read about it. There was very little information about customer success back then. क्योंकि the company was based out of Australia, तो वहाँ पे कुछ title था. That's why I got this title. अच्छा. And basically I was like, अच्छा चलो ठीक है. And then I started reading a little bit more about it. Although it was a service-based company, but I was like, अच्छा ये चीज़ है. And then, I was switching jobs. I was like, अरे यार अब project management में आना. So I was searching for project management jobs and all. And then, I found out that customer success की भी jobs open होने शुरू हो गई हैं इंडिया में. And I was हाँ. like, अरे यार ये जो चीज़ है, actually this is something I like because I wanted to be a part of a product-based company and I wanted to be close to products. तो वो दो ही जगह हो सकता था. Either you become a product manager and then Hmm. second is you become a customer success manager. Product management में I saw कि सारी positions में it's like अच्छा you have to be from IIT, IIMs and all. हाँ. If you're not from Tier 1 institutes, product management is very difficult. Okay, that's fine. Customer success पहले से I have got the title and then I'm doing it although it's a service-based thing. But officially 2016 के अंदर में I transition into customer success and then I never looked back. उसके अलावा there were a couple of things that happened. I went to Italy back in 2019. That's where I got this Western touch. I got to know about the things happening in Europe and US. Hmm. कि, what I saw that there are a couple of people in India. There are a lot of people actually in India. But Hmm. वहाँ पे कोई communication नहीं था. Nobody was talking about customer success back then when I was there in 2019. I was like, अरे यार ये why this is so that nobody is talking about customer success when there are thousands of people in Hmm. this domain. And that is when I decided, I have to start something. Fortunately, unfortunately, due to COVID, I had to return back in 2020. And then that's when I basically started doing something about the communities. I remember reaching out to people saying, hey, I'm starting this community. Would you like to join? And some people didn't respond. Some people were like, hey, we would love to do it.
So we started doing virtual meetups online one time. So we'll do talk about something, a topic on CS. We'll invite speakers and then we'll get into it. So WhatsApp community start किया, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे. And now, Hmm. you know, I think our community has more than 2,000 people. We have done Hmm. physical meetups, virtual meetups, all those podcasts, everything is there. So that's the story. अच्छा, Ankit, आप you like started mentioned in the start that you were a developer. तो typically अगर मैं देखूँ, so मतलब not maybe the 100% but personality contrast है, मतलब काफी ज्यादा एक software developer में versus somebody Correct. who is in a customer facing role like a CAM, CS, कोई भी रोल में आप देख लो. तो क्या ऐसा पर्सनालिटी शिफ्ट भी अपने अंदर हुआ था उस पीरियड में, या यू हैड टू डू Yeah. समथिंग टू अडेप्ट टू दिस, लाइक हाउ डिड दिस एंटायर थिंग पैन आउट? एंड सबसे पहले तो लाइक मैंने देखा है जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि वो उस एक जोन में रहना कि वी विल वर्क आवर ओन आवर्स, वी डोंट हैव टू टॉक टू एनीबॉडी, यू जस्ट टेल अस व्हाट वी नीड टू कोड, हम करके दे देंगे, बस उससे ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करो. सो हाउ डिड दिस एंटायर शिफ्ट इन माइंडसेट, पर्सनालिटी हैपन? आई थिंक मेरा भी पहले वही सीन था कि अगर डेवलपर है, यू नो, दिस इज गुड जॉब, दे आर डेवलपिंग गुड थिंग्स, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है. बट देन व्हेन आई वाज प्रमोटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजर, वो कुछ ऐसा नहीं था कि प्लान में था, बट आई वाज प्रमोटेड, आई वाज गिवन पीपल टू हैंडल, एंड धीरे धीरे द माइंडसेट शिफ्ट हैपेंड ऑटोमेटिकली. तो वो ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हो जाती हैं. So that was the and that is how, you know, I ended up becoming a project manager. और जैसे ही आप project manager बनते, you get people management skill. You get to speak to people. You have to write those emails. You have to talk to your customers. So धीरे धीरे you become more customer facing. Or if you talk about customer success, you know, customer success is related to two things, right? You are speaking to customers. You are making sure that they get the success. And the second thing is you know about the domain. I agree that there is a big mindset change when you shift from a developer to customer success. Both things are different, but एक चीज बहुत important है is people or the CSMs who are technical enough, they are playing game at a different level altogether. ठीक है. करेक्ट. कभी कभी बात होती है technical CSMs होने चाहिए. Should CSM know technical stuff or not? I always responded with this fact that if you are technical, it would always have benefits. Because you would know the domain, you would have things on your plate, you would know what kind of problems they would have. Otherwise, you would always have technical people around you. You would need people, technical people around you to solve things. If you are a person who's technical, you can basically solve a lot of things yourself. Secondly, you can also speak to product team inside your company or you know, solutioning guys that hey, you know, ये technically ऐसे चल रहा होगा. Otherwise क्या होता है? People don't understand. Thing is not working. Raise a ticket. That doesn't work. Okay. If you're technical, you would know. अच्छा ये ऐसे हो रहा होगा. This is the bug. Explain things better to your own team. Right. बढ़िया बढ़िया. अब यार विल यू नो थोड़ा सा ये इंटरव्यू वाले उससे विल जस्ट गेट आउट अ लिटिल एंड विल मूव इनटू अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी टेलिंग मोड. तो यार लेट्स स्टार्ट विद सम हिलेरियस कस्टमर स्टोरी, या जैसे कि किसी कस्टमर के शायद बिछड़ने का गम हुआ हो, या कोई ऐसा मोमेंट हुआ कि किसी कस्टमर के साथ कि उस टाइम पे लगा यार ये तो बहुत बुरा हुआ, बट लुकिंग बैक यू फाइंड इट लाइक एब्सोल्युटली हिलेरियस. कोई भी ऐसा, जस्ट टेल अस अ फनी इंसिडेंट. Yeah, I remember. So we had a big name from US at Tech में था, something like Byju's. I cannot mention the name. That's okay. US based firm. So everything was going on fine. I was working as a CSM there, और सब कुछ ठीक था. I was like अरे ठीक है. And our founder was very interested in that deal because उसमें growing का बहुत potential था. So like अच्छा, we have a small account. And now, if we handle this well, we will have a bigger chunk in like coming years. And one day I woke up, I received an email. I actually saw the message from my manager first that, hey, Ankit, did you see that email from these guys? I was like, I haven't seen that. I opened my email and they were like, hey, you know, we thoroughly enjoyed working with you.
but unfortunately, our procurement team has decided to move to a different vendor. Hmm. I was like, अरे ये क्या हो गया एकदम से? And then the next statement was, we understand that we have a contract with you till the end of this day, so we will honor that, but we would not be able to continue. Hmm. So I was like, अरे ये हुआ क्या? मतलब, how is this even possible? Because I spoke to these guys like yesterday, and they were like Hmm. saying everything is fine, सब कुछ सही चल रहा है, you know, they were all happy. The people are there, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक लग रही हैं. But all of a sudden, you know, you get an email saying कि अच्छा भाई हम तो बंद कर रहे हैं, and the हाँ customer हाँ is now हाँ. shut. So it's funny for a moment, but it has a big learning to it. कभी कभी, you know, बोला जाता है कि, you know, you should read between the lines. ठीक है, हाँ so हाँ. कई बार, you know, let's say कोई account, you know, you are getting from sales, try to understand कि क्यों उन्होंने आपको कहते हैं basically contract दिया, right? A lot of people, a lot of times we don't see the notes that they have mentioned. ठीक है, कई बार वो डालते खुद नहीं है, but it's really important that we understand it from sales कि कुछ और तो चीज़ नहीं है, कोई और decision making power तो नहीं जो हम कर रहे हैं. Especially जो bigger companies होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि there are teams responsible for different stuff. ठीक है, और किसी आप जिस टीम के साथ डील कर रहे हो सकता है उसके पास उतनी पावर ही ना हो. हाँ कोई हाँ और एक हाँ. टीम जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो, तो उस केस में हो सकता है कि वो कुछ डिसीजन ले और आपको वो लेना पड़े. हाँ. ठीक है, सेम थिंग हैपन विद दैट थिंग. आई कुडंट रीड दैट. सेल्स पीपल फेल टू रीड दैट. नोबडी हैड अ क्लू. अकाउंट गॉट. So stakeholder mapping, read between lines. These are the two learnings that I have from the account. अच्छा, ये एक होता है कि ऑल्दो सब लोग इंटरव्यू में बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं व्हेन इट गोस टू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बट कोई मतलब कोई ऐसा मोमेंट हो कि जब आपने लगाओ कि यार आज तो मैंने मतलब वी ऑल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट एट वर्क, बट कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी हमसे भी गड़बड़ हो जाती है. Yeah. कुछ ऐसा कर दिया हो कि फिर लगाओ फिर उसके बाद में बहुत दुख हुआ हो, रिग्रेट हुआ हो, या बहुत गाली पड़ी हो मैनेजर से किसी से कि अगर कुछ ऐसा कर दिया हो कभी तो. No, I was fortunate enough कि कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला. I think I have worked with great companies. But हाँ, कुछ एक चीज़ें आपको internally feel होता है कि अच्छा ये कैसे हो गया. So I remember, you know, so now I do a lot of CS automation and enablement. So I remember automating one of the Excel, and I was very proud कि यार अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है. The analysis that used to take around 1 to 2 days, now it would happen in like, let's say 15 minutes, all because of Excel templates and macros that I have run, macros that I have created. I will come to that, और वो लिंक करेगा पुरानी वाली स्टोरी से, डेवलपर से, कि कैसे आपको वो चीज़ें हेल्प करती हैं हर टाइम पे डेवलपर होना भी. बट फॉर दिस स्टोरी, सो हुआ क्या कि I automated something, and then you know, I shared that data with the leadership team, and they were like, "Arey Ankit, this data is not right." I said, "Hey, you know, this is happening because शायद ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए." And then the reply that I got, that we know our data, please recheck. So हुआ क्या था कि I wrote the script, and the script failed because there was empty cells in between the Excel sheet, और उसकी वजह से उसके जो नीचे के कॉलम्स थे, उसके जो नीचे के रोज थे, वो रीड ही नहीं करे स्क्रिप्ट ने. And basically the data that got analyzed, it was only 20%. And I shared the data with the leadership team saying that, hey, you know, I have done the analysis like real quick. So ऐसे moments भी होते हैं, but you learn from it because these things are not written anywhere कि script इतने time में पढ़ जाएगी, ये नहीं चलेगा, all those things are not there. But ऐसे मोमेंट्स आते हैं हर किसी के टाइम में. नाउ व्हाट आई हैव डन इज कि जब भी कैसे कुछ होता है, आई मेंशन ऑल दीस इंस्ट्रक्शंस इन दोस एक्सेल शीट कि ऐसे ऐसे सारी चीजें करनी है, ये सब चीजें होंगी तो स्क्रिप्ट नहीं चल पाएगी. सो प्लीज रिमूव दोस थिंग्स एंड देन योर लाइफ वुड बी इजी. सो दैट्स द स्टोरी दैट आई वांटेड टू शेयर. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. आई थिंक
मैंने तभी ना एक बहुत चीज सेव करी है आज तक अपनी लाइफ में, कभी भी ये क्लेम नहीं करा कि मेरे को एक्सेल या कुछ ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से आता है। मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं काम निकाल लूंगा, बस इतना आता है मेरे को। अच्छा, एक मतलब अकम्पलिशमेंट्स की अगर बात करी जाए तो यार, मतलब लोग लिंक्डइन पे अपने टाइटल्स में लिखते हैं कि ये मिला है, वो मिला है, हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं। बट मतलब बट यू आर प्रोजेक्टिंग टू द वर्ल्ड, और एक जिससे आपका एक पर्सनल कनेक्ट होता है किसी अकम्पलिशमेंट का। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कुछ आपने अचीव करा है और उस कुछ आपको मिला है, बट आपको लगता है कि उस पॉइंट पे आके कि हाँ यार, नाउ आई हैव डन समथिंग इन लाइफ। तो कोई ऐसा अकम्पलिशमेंट है जो कि दैट यू कनेक्ट विद समथिंग वेरी पर्सनली, कि यार ये मैंने, हाँ, अपनी लाइफ में बहुत बड़ी एक चीज करी है। Yeah, I think the Ankit that you see is way different than Ankit that was there 10 years ago, or I would say हम्म। even 6 years ago. So coming back to the old point कि पर्सनालिटी बहुत अलग होती है एक डेवलपर की हाँ और हाँ हाँ एक जब आप कस्टमर सक्सेस में जाते हो, सो दैट इज हाँ कम्प्लीटली डिफरेंट. हाँ I had fear of public speaking. I could not face people. I was like super introvert कि हाँ अच्छा ठीक है लोगों से बात करनी है, तो that is like a big no for me. That was the Ankit जो कि शायद 7-8 साल पहले का वो चीज़ हो गई. And you know, from that point, starting your own podcast, inviting people over, and then हाँ doing a meetup, I think that is sort of a personal achievement for me. So I remember when I recorded my first series of the podcast, a lot of people reached out. मतलब 1-1.5 साल या शायद अभी भी उस podcast को आए हुए 3 या 4 साल हो चुके हैं. A हाँ lot of people still reach out to me saying that, hey, you know, we heard that episode, it helped me in cracking that interview. And that feels nice because, you know, you feel that you have accomplished something. I remember when, you know, I did the first meetup from back in 2020, 2022, after all हम्म the COVID restrictions were lifted. So my company, More Engage, was kind enough to give the space. And then there was someone who came to me and she was like, hey, you know, it was a dream to actually meet you in person because I have heard a lot of things, I have seen a lot of posts. हाँ। So you feel that, hey, you know, you have done something. That is why, you know, you get so much of love from the community. So मेरे लिए तो वही अचीवमेंट है. और एक एक इस पॉइंट पे मैं बताना चाहता हूँ, अंकित की ना, मतलब मेरे सामने भी अंकित का रेवलेशन बिल्कुल फैंटम की तरह हुआ था। बिकॉज मैंने जैपस्किल ज्वाइन करा एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि कुछ चल रहा है, अंकितिफाई ये, अंकितिफाई वो, अंकितिफाई वैसा। और मैं एकदम ऐसे हो गया था कि यार ये आदमी है कौन, इनसे तो मिलना पड़ेगा एक बार ही कि क्या चल रहा है, इतना नाम। मतलब हर इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एल्विस की, हर तरफ आपको नाम सुनाई दे रहा है कि मतलब कुछ था ऐसा। तो आई एग्री विद दैट पॉइंट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड। अच्छा, एक वक्त, जज्बात, हालात बदलने वाली एक अगर कोई स्टोरी जो कोई ऐसा कस्टमर के साथ हुआ हो कि आपको इनिशियल लगा यार ये तो बहुत ही खराब आदमी है, मतलब इसके हम्म. साथ डील करना पड़ेगा, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बट जब थोड़ा टाइम बीत गया, देन उसके बाद एकदम से एक दिन आपने रियलाइज करा कि नहीं यार ये तो काफी सही बंदा, मतलब दैट वाज इनिशियली प्रॉब्ली इवल, बट इवेंचुअली वो बंदा आपका बहुत बड़ा एडवोकेट बना, उसके साथ आपका बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बना। कोई ऐसी स्टोरी हाँ, हुई है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है ना. सो कुछ एक होते हैं टफ कस्टमर्स, कुछ एक होते हैं इजी हाँ कस्टमर, कुछ एक होते हैं बहुत ज्यादा टफ टफ कस्टमर्स जिनको लगता है कि यार हाँ हमें तो बहुत सारी चीजें करनी है. सो आई हैड अ टफ कस्टमर एज वेल हम्म व्हेन आई यूज्ड टू हैंडल कस्टमर्स. तो वो भी मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्पेस में थे, एंड देन दीज गर्ल्स वर यूजिंग आवर प्रोडक्ट रियली वेल. तो हम्म इतने अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे. आई रीच आउट टू देम वंस कि हम क्यू बेयर करना चाहते हैं आपके साथ. दे वर लाइक अरे यार क्यू बेयर में आप क्या डेटा दिखाओगे? आई वाज लाइक अच्छा हम ये चीजें दिखाएंगे. एंड ही शोड मी डैशबोर्ड जो कि शायद हमारी एनालिसिस से भी बहुत अच्छा था. दे मेंशन कि हम ये एनालिसिस एक्चुअली वीकली कर लेते हैं क्योंकि हमें ये डेटा सबको दिखाना होता है. ना सीएमओ एक्चुअली लुक्स एट द डेटा. आई वाज लाइक अरे यार इनका तो अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है. हम्म बट एनीवेज दीज गाइस जब वो इतना टाइप पे डेटा निकाल रहे हैं और सारी चीजें चेक कर रहे हैं, सो दीज गाइस वर लाइक वेरी डिमांडिंग.
ये चीज नहीं चल रही है एक कैंपेन में, छोटे से भी प्रॉब्लम है, सो दे वर लाइक अरे ये चीज नहीं चल रही है, वो चीज नहीं चल रही है। एंड हाँ। आई रिमेम्बर उनके साथ ऐसा हो गया था कि आई यूज टू गो ऑन कॉल्स विद देम लाइक एवरी अदर डे। तो हम्म। हमने एक वॉर रूम टाइप का बना लिया था कि हमें रोज इनके साथ कुछ टाइम तक बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो इनके इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। हाँ। बट एक चीज मेरे को लगता है शायद मैंने वो कहाँ से इंस्टिंक्ट आया है, क्या चीज हुई, आई आई केप्ट टेलिंग देम वन थिंग कि यार आप कुछ भी है, आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी यू वुड नॉट पे माई कंपनी एंड देन आई वुड नॉट गेट द सैलरी। ठीक हाँ है, ऑफ कोर्स। तो थिंक अबाउट दैट कि अगर आप ये मत सोचो कि कहते हैं मैं दूसरी कंपनी का बंदा हूँ, आप यही सोचो कि मैं आपकी तरफ ही हूँ, एंड हाँ। आई विल फाइट फॉर दीज इश्यूज इंटरनली। एंड आई थिंक वो थोड़ा सा एक जैसा होता है ना, कोई बंदा गुस्से में होता है तो एक थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाता है, हम्म। शायद उस तरह से वहां पे कुछ हुआ। एंड यू नो धीरे धीरे चीजें सॉल्व होने लग गई लोगों के साथ। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि इश्यूज हैं तो चलते ही जा रहे हैं, इश्यूज धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। एंड दैट गाय बिकम अ रियली गुड फ्रेंड धीरे धीरे। एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने कंपनी चेंज करी, हम्म। उसने हमें वहां पे रेफर करा। उसके 1.5 साल बाद उसने फिर से कंपनी चेंज कर ली, उसके बाद उसने हमें वहां पे भी रेफर करा। अच्छा। तो को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बेसिकली आपको नहीं पता होता कि क्या चीज आपके सामने आने वाली है, यू नो यू बिकम हाँ। विद पीपल, यू दे बिकम सो नाइस टू यू कि धीरे धीरे उन्हें लगता है कि हाँ अच्छे कंप्लेंट तो कर रहे थे बट दे वांट आवर प्रोडक्ट ओनली जस्ट बिकॉज दे फील दैट कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट, प्रॉब्लम तो थी पर ये सॉल्व तो कर रहे हैं कम से कम, ये हाँ। सुन रहे हैं हाँ। हमारे बात, दे आर एबल टू सॉल्व द इशू, वी वांट दिस प्रोडक्ट ओनली। हाँ। ठीक है, सो देयर इज अ पॉजिटिव थिंग टू इट एज वेल, अगर कोई कस्टमर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह रेज कर रहे हैं। कोई recommendations like for young CSMs, जैसे like who should they listen to, what should they read, कोई recommendations हैं आपके? आई थिंक देखो देर आर लॉट ऑफ बुक्स, देर आर लॉट ऑफ पॉडकास्ट लाइक योर्स दे कैन लिसन टू, बट हम्म। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो क्रिस्प चीजें मिलेंगी ना लोगों को वो लिंक्डइन पे मिलेंगी, सो यू हैव टू बी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, हम्म। सेकंड थिंग आई वुड रिकमेंड इज कि a lot of people actually come on LinkedIn when they are searching for jobs, हाँ and that ये is है। वेरी रॉन्ग, वो नहीं चलेगा। यू हाँ। हैव टू बी ऑन लिंक्डइन, राइट, यू हैव टू कंज्यूम कंटेंट, यू हैव टू अपस्किल, यू हैव टू यू नो स्पीक टू अदर पीपल सो दैट यू नो क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक हम्म। है, second thing is you know when people do a lot of these meetups, we do a lot of meetups, right, Bangalore, Delhi, all these places, a lot of people don't turn up. हम्म। Maybe they want to turn up when they are looking for jobs. The purpose of meetup is not to look for jobs. The purpose of meetups to upskill and network with people so that you हम्म। can have long-term relationships, right? So राइट। show up on LinkedIn, show up on meetups, show up everywhere, and धीरे धीरे करके you would be a better CSM, and then would help you get a job in CS. मेरे को तो ये लगता है। परफेक्ट। एंड मैंने भी ये ऑब्जर्व करा कि काफी लोग कम्युनिटी में सिर्फ वहीं एक्टिव है जब जॉब्स की बात हो रही है, उसके अलावा देर नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट टॉकिंग। मेरे को भी ये Yes. चीज पर्सनली काफी ऑफ लगती है। सो क्विक रिकमेंडेशन टू एवरीबडी हु वॉचेस दिस, जस्ट स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, लोगों से बात करो, मिलो, नेटवर्क करो, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट बहुत होने वाला है। Correct. तो थैंक यू सो मच अंकित, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। अब बिफोर वी एंड विल डू जस्ट टू क्विक थिंग्स। सबसे पहले तो यार we'll do a small game। तो मेरा I do this on my podcast, I'll give you a word, आपको पहला वर्ड बोलना है। I call it the AK-47 round, so if you're ready। ठीक है, the AK-47 round begins in 3, 2, 1। Bangalore। Parish. Boss। Boss is very nice. CS। CS is life. Company। Company is very good. Vacations। Oh, I love them. I want to go on vacation like every other month. Peace। Peace, spirituality. Nice। Friends। Friends, they are also life because you can share a lot of things which you cannot share with anyone else. Family।
family is also life because they are very important in everything. They are your support system. दिल्ली. दिल्ली तो दिल है ही. ओके नाइस. चाय की टपरी. चाय की टपरी, गुड प्लेस टू हैंग आउट. आपको जैसे एक ब्लॉक आ जाता है सिर में, हाँ. यू गो आउट एंड देन यू बेसिकली गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि अच्छा ये भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, अब जाके ये करना है. नाइस 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 नाइस. थैंक यू सो मच अंकित. अब बिफोर वी एंड दिस, बस जस्ट लेट अस टेल अस आवर व्यूअर्स, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, कि लाइक वी हैव सीन यू डूइंग एन इवेंट नेक्स्ट वीक इन बैंगलोर. फिर उसके अलावा भी सीएस मेंटर की इतनी सारी चीजें चलती है अनुने के साथ, सब लोग के साथ में. बट what is it that you like to do to just for yourself, या मतलब apart from work या apart from CS, what are your pursuits? कहाँ आपको मन लगता तो है? मुझे लगता है कि आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन एवरीथिंग. सो अगर आई फाइंड समथिंग, आई गेट इनटू इट कि एक चीज चल कैसे रही है. इफ आई हैव टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, आई वुड सर्च फॉर द बेस्ट माइक. उसमें क्या होगा, कंडेंसर माइक क्या होता है, ये दूसरा टाइप का माइक क्या होता है, ऑल हाँ. दोस थिंग्स आई विल फाइंड आउट. जस्ट गिव एन एग्जांपल. सो धीरे धीरे कुछ भी ऐसी चीज होगी तो आई लाइक टू रिसर्च अबाउट इट लॉट. तो अभी क्या है कि व्हाट आई हैव रियलाइज कि अगर आप यू आर डूइंग अ जॉब, इफ यू डोंट नो अबाउट पर्सनल फाइनेंस कि हाँ कैसे आपकी सैलरी को यूटिलाइज करना है, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट देयर. ठीक है. तो ऐसी कुछ चीज़ से मेरा पैशन बना धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड्स को लेके, कि क्रेडिट कार्ड से धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. And eventually I started a community around that, which is called Card Genius. And then I posted about it casually on LinkedIn. A lot of people reached out, community joined kara, and I think we have around good 270 people in the community right now. We talk about personal finance, we talk about saving money, we talk about best card for each use case. And yeah, besides that, I travel. I love to travel. So कभी भी कुछ travel का लगता है मेरे को, I want to travel there. So when I was in Italy, I traveled to around 10-12 countries. इसके अलावा भी I have been to a couple of countries in Southeast Asia. And then इस साल भी I went to Vietnam, and maybe देखते हैं, शायद इस साल भी I would go again somewhere. So yes, I love to travel. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आई थिंक आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी काफी एनलाइटिंग था, बिकॉज मतलब आई हैव मेट अंकित, आई हैव वर्कड विद हिम, हम लोग साथ में इवेंट वगैरह कर चुके हैं, वी इंटरेक्टेड, हैड बियर्स एंड एवरीथिंग. बट इस तरीके से जानने का मौका ना मतलब हमेशा नहीं मिल पाता, बिकॉज यू आर विद द ग्रुप एंड एवरीथिंग. तो थैंक यू सो मच अंकित. इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट. Same here. मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई होप द व्यूअर्स विल आल्सो लव इट. एंड link to Ankit's Card Genie, Customer Success India, all the communities will also be on this chat. तो अगर कोई नहीं है उस कम्युनिटी का पार्ट ऑलरेडी, तो प्लीज गो ahead and join it. एंड अंकित के पॉडकास्ट चैनल का लिंक भी इसमें है, तो प्लीज डू गो चेक इट आउट. आई एम श्योर जितने भी नॉलेज आपको चाहिए सीएस में, काफी अच्छा आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा. अगेन थैंक यू सो मच अंकित, एंड वी विल सी एवरीबॉडी इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय गाइस. ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए.